anywhere, any organization. For example, for a automation of any system या any organization can require मतलब it require data acquisition system. What is mean by data acquisition system? Data acquisition system का मतलब होता है कि we have a set of components, set of devices. For first of all, we are converting physical quantity into electrical quantity. Electrical quantity may be analog, may be digital. If electrical quantity in the form of analog signal, it it can be converted into digital form, because most of our equipment are interfacing with digital system, and digital system require binary number. It accept 0101 coding. And if we are talking about data acquisition system, the data acquisition system having set of equipment. First equipment is a transducer. Before that, we use sensor. Sensor is a device which converts physical quantity into electrical quantity. Electrical quantity may be analog or digital. Electrical quantity is analog, then it can be converted into digital for the further proceeding. And after that, if we got digital quantity, then we can store in electronics devices such as storage system, and we can use digital communication system for transmitting data and information to the long distance. At here, if we are talking about data acquisition system has set of equipment like it has sensor, it has transducer, it has storage device, it has monitoring device, and it has transmitting device. These are the set of data acquisition system. For any process, any process of the physical quantity, it require to this type of equipment. And now I will discuss first of all signal conditioning. What is mean by signal conditioning? It is the important concept of the data acquisition system. ठीक है? आवाज मेरी सुनाई दे रही है प्रॉपर सारे लोगों को? हेलो? यस सर, सुनाई दे रही है। हाँ सर। यस सर। ठीक है। So first of all, I will discuss about signal conditioning. As I saw the introduction, the signal conditioning refer to operation performance on a signal to convert them to the form of suitable for a interfacing with other element in process control loop. ठीक है? If we are talking about signal conditioning equipment, as earlier discussed about the basic concept of the data acquisition system, I told you that we have physical quantity, data in the form of physical quantity, which can be converted into desired physical quantity with the help of sensor, and desired physical quantity will be converted into the electrical quantity. Electrical quantity is in analog nature. The analog electrical quantity is converted into digital quantity, and analog to digital conversion take a device which is known as signal conditioning equipment. ठीक है ना? And if once we convert analog to digital signal, digital signal can be controlled by the other equipment या other control applications. ठीक है ना? अब देखो, अब इस डाटा एक्विजिशन सिस्टम की को जो है बहुत आसान भाषा में अगर हमको समझना है तो हम जो है एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना? हमारे पास कोई एक प्लांट है, प्लांट के अंदर जो है कंट्रोलिंग की जा रही है। किस चीज की कंट्रोलिंग की जा रही है? मशीन की कंट्रोलिंग की जा रही है। जैसे सपोज
जो है, अगर हम एक जो हमारा जैसे थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो की बात करें तो उसमें जो है वाल्व को ओपन और क्लोज करके जो है हम वाटर जो पेन स्ट्रोक में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके वॉल्यूम को जो है इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली जो है अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वाल्व को ओपन करके स्टीम जो इनपुट करते हैं उसको जो है इंक्रीज करते हैं। जैसे सडनली अगर लोड हमारा इंक्रीज होता है तो वाल्व को हम ओपन कर देते हैं, तो जो हमारा जो स्टीम इनपुट हो रही थी वो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एडिशनल जो एडिशनल लोड जो इंक्रीज हो रहा था उसको कंपनसेट कर रहा था। अब इस ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करना होगा तो सबसे पहले हम बहुत सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जो है आपको ये सिखाया जाता है किसी भी मशीन के लिए जो है कंट्रोल सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए। ठीक है ना। जैसे ही आपने कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर लिया तो उस ऑटोमेटिक और मैनुअल दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो ऑटोमेटिक जहां पे रनिंग होती है वहां पे जो है हम पूरा डाटा एक्विजिशन सिस्टम को यूज करते हैं। डाटा एक्विजिशन सिस्टम को यूज करके पहले क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हमारा डेटा होता है, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के अंदर जो है कौन कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। सबसे पहले फिजिकल टू डिजायर फिजिकल में सेंसर यूज करेंगे। डिजायर फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल में जो है हम ट्रांसड्यूसर। अब इलेक्ट्रिकल के बेसिक पैरामीटर को जो है हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसके कंसेप्ट को यूज करके जो है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है हमारी एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में जब है तो उसको जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अगर इंटरफेस करना है, प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है तो सिस्टम के अंदर हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो सिस्टम जो है डिजिटल सिग्नल को जो है एक्सेप्ट करता है या डिजिटल सिग्नल से इंटरफेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है हम डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जहां पे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन होता है वहां पे जो सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो है यूज किया जाता है, सिग्नल कंडीशनिंग यूज किया जाता है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर concerned only with a analog conversion where the conditioned output is still an analog representation of the variable. Even application involving digital processing, some type of analog conditioning is usually required before the analog to digital conversion is. देखो, sometime it required to convert analog signal to digital. Signal conditioning equipment are used for both. If we are talking about uh, if we have a system which requires desired analog signal, so in this case we have to use signal conditioning equipment for the conversion of analog signal to desired analog. And some in a digital system which require analog signal to digital signal. So analog to digital conversion is possible through only the signal conditioning equipment. Signal conditioning equipment के थ्रू ही जो है हमारा एनालॉग टू डिजिटल पॉसिबल है। जब एनालॉग टू डिजायर एनालॉग का रिक्वायरमेंट होता है वहां भी जो है सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट को यूज करते हैं। So this is about the basic concept of the signal conditioning equipment. ठीक है। अब इसके बाद में principle of analog signal conditioning. Here we have to discuss about the signal label and bias label charges. ठीक है। अब इसमें क्या होता है, one of the most common type of the signal conditioning condition involves adjust the label magnitude and bias zero value of the sum value representative of process variables. अब देखो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर जो है दो टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक क्वांटाइजेशन, दूसरा सैंपलिंग। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, सैंपलिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है कंटिन्यूअस होता है, तो उसको जो है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है, सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट परफॉर्म कर रहा है। दूसरा जो है
क्वांटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो हमारा कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल होते हैं, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, और जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, और नेगेटिव मैक्सिमम से जो है इस तरह से वेरी करता है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको जो है स्टेप साइज में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल इनटू डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल, ठीक है ना। डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो है हमारा, इसको कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट को हमको यूज करने होते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, सम सेंसर आउटपुट वोल्टेज में वेरी फ्रॉम 0.2 to 0.6 volt as the process variable changes over the measurement ranges, ठीक है। However, equipment to which the sensor output must be connected perhaps require voltage varies from 0 to 5 for some variables। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि सेंसर का आउटपुट जो है 0.2 और 0.6 के बीच में होता है, जबकि जो है जो डिजिटल होता है, डिजिटल में या तो पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे या तो जीरो करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 0 1 का जो कंसेप्ट होता है, जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो है वन वन रिप्रेजेंट करेगा डिजिटल क्वांटिटी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ए वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें, अगर जो है इसके मिडिल से बिलो है तो उसको जीरो एज्यूम किया जाता है, और मिडिल से जैसे सपोज जो है अगर 5 की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0.2 और 0.6 है तो इसको हम जीरो एज्यूम करेंगे, क्योंकि 2.5 तो 2.5 से बिलो वाली क्वांटिटी है तो ये जीरो। तो इस तरह से जो है कंडीशंस अप्लाई किया जाता है सिग्नल को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ तक समझ में? हेलो हेलो, यस सर। साहिल, ये सुल्तान और रमन को फोन नहीं किया तुमने? सर सुल्तान को फोन करा था और रमन को भी करा था, हमने अटेम्प्ट नहीं किया फोन। सर रमन आ रहा है, उसका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, बोला जैसे हो जाएगा आ जाएगा। उनको बोलो कि अटेंड करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर इसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है, 1 मिनट। और देखो आगे क्या है, a sensor measure variable by the converting information about that the variable into dependent signal of either electrical or pneumatic nature। pneumatic nature क्या होता है? To develop such a transducer, we take advantage of the fortuitous circumstances in a nature where the dynamic variable influences some characteristics of the material. We obtain desirable the effect of the signal conditioning by the term transfer function. By the term we mean the effect of the signal conditioning equipment। इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है, ठीक है। We perform the required signal conditioning by the passing to occur when the 0.2. This can be done by the simple subtraction 0.2 from the sensor output, which is the 0.6 or 5. Now we have voltage varies, so we need to make the voltage larger
multiplied by the 12.5 द न्यू ऑफ 0.5। अब इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि जैसे जो क्वांटिटी आ रही है तो उसमें क्या होता है कि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जो हमारा जो एनालॉग सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल में क्या होगा कि एक रेफरेंस वैल्यू होगा। रेफरेंस वैल्यू का मतलब कि एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा कि उस कंडीशन मतलब उस रेफरेंस पॉइंट से अगर विलो की क्वांटिटी आ रही है तो उसको जीरो एज्यूम किया जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्वांटाइजेशन में मैंने बताया था आपको कि क्या होगा कि स्टेप साइज में कन्वर्ट किया जाएगा। अब स्टेप साइज को जो है अब एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू जो है 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अगर सपोज जो है ये क्वांटिटी काफी लेस आ रही, ठीक है ना, तो उस केस में जो है हम मल्टीप्लाई करके जो है एक डिजायर वैल्यू तक उसको हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसका एक 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम, ठीक है। सुनाई दे रहा है रमन? हाँ सर, हेलो सुनाई दे रहा है। हेलो यस सर। हेलो हेलो हेलो, पहली आवाज सुनाई दे रही है बेटा? अभी हाँ अभी सर। हाँ हेलो, क्या है इसका एक शॉर्ट नोट बना लो। हेलो, अभी ना मैं बोलना पहला स्लाइड में ओपन कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरा करूंगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बताते हैं, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, पहले और दूसरे का जो शॉर्ट नोट बना लो, इसके बाद में फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है।